Hey guys, welcome to the channel Calibrate Physics. On this channel, you all can attempt a lot of questions, and for the ease of solving, I have divided the questions in different categories based on their difficulty levels. The first one is the beginners level question set, where you can learn simple applications of concepts. Then you can move on to the expert level question sets, where you can learn applications of concepts in tricky situations. And finally, you can move on to the champions level question sets. These are highly complex questions, and to attempt them, you need a thorough understanding of that particular topic. Also, during the later part of this video, all the questions will appear on the screen one by one, and to attempt any particular question, you can pause the video, solve that particular question, and then again play the video to move on to the next question. You can repeat this process for all the other questions as well. Later, you can also look at the answer key as well as the solutions to get a detailed understanding on how to attempt different types of questions in different situations. So guys, start practicing a lot of questions on this channel, and gradually you will definitely see a lot of improvement in the understanding of any particular topic. You can also subscribe to the channel and click on the bell icon to get regular updates. So guys, go for it and wish you all best of luck. In this video, you all can attempt 6 more expert level questions on elasticity. Here are the questions. Verify your answers from the answer key. Okay, so let's start discussing the solutions now. Question number 1. A wire of cross-sectional area A, Young's modulus Y, and certain length is suspended from two horizontal rigid supports at the end A. A mass M is suspended at the midpoint of the wire. Find the angle theta, assumed to be very small, in radians made by the wire with the horizontal at equilibrium position. देखो ऐसी टाइप का सवाल अपन ने एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चन सेट 1 में भी देखा था, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे वापस अप्लाई करते हैं. इट विल बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यू. तो यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है और इसकी मदद से हमें थीटा निकालना है, विच इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जो कि डिफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते कि ये जो मास है इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको y मान लेते कि y अमाउंट से नीचे गया होगा, और वायर का टोटल लेंथ 2l मान लेते. दैट मीन्स एक्सटेंड होने के बाद ये वाला लेंथ अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बन जाएगा, एंड टोटल लेंथ इसका डबल हो जाएगा. राइट. सो वायर के अंदर जो एक्सटेंशन है उसको अपन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर न्यू लेंथ माइनस 2 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ, सॉरी माइनस 2 टाइम्स l विच इज द ओरिजिनल लेंथ इन आवर केस. तो यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी? स्ट्रेन विल बी डेल्टा एल अपॉन एल. तो पूरे इक्वेशन को, सारे टर्म्स को एल से डिवाइड कर दो, एल को अंडर रूट के अंदर ले जाके भी डिवाइड कर दो, तो अंडर रूट के अंदर जाने पर वो एल स्क्वायर बन जाएगा, और अंडर रूट को टू दी पावर हाफ लिख दो, तो दिस विल बी 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर टू दी पावर हाफ माइनस 1. हमारे केस में y जो है वो l से बहुत ही छोटा है, तो वाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर ये 1 से बहुत छोटा होगा. 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, इसको अपन अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx लिख सकते हैं इफ x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, है ना. इसको अपन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर लो. ये हो जाएगा 2 1 प्लस हाफ ऑफ वाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस 1. तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू आ रही है 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा. तो स्ट्रेन की वैल्यू सिंपली वाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर के इक्वल आ रही. स्ट्रेन मिल गया तो स्ट्रेस भी मिल जाएगा. स्ट्रेस जो है वो यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन होगा, और स्ट्रेस मिल गया तो वायर के अंदर जो टेंशन फोर्स होगा वो भी मिल जाएगा. टेंशन फोर्स इन द वायर इज स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज ए वाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर. अभी इस मास के एफबीडी से अपन क्या देख पा रहे? नीचे जो वेट लग रहा है उसको इन टेंशंस के वर्टिकल कंपोनेंट्स बैलेंस कर रहे. बाय सिमेट्री टेंशन दोनों वायर्स में सेम ही होगा. एक्चुअली एक ही वायर है मगर दोनों पार्ट्स में सेम होगा.
और टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो t sin थीटा होगा, दैट मींस 2t sin थीटा, इट्स बैलेंसिंग mg। t की वैल्यू यहां से डाल दो 2 इंटू a y स्क्वायर बाई l स्क्वायर, ये mg को बैलेंस कर रहा है। अच्छा, इंटू साइन थीटा का भी टर्म आ जाएगा, ये mg को बैलेंस कर रहा है। साइन थीटा को अपन y अपॉन l मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, थीटा इज वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली y अपॉन l। तो इसको रीअरेंज करने पर क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ay। साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा ही मान लो बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, एंड y स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर को भी अपन tan स्क्वायर थीटा या फिर थीटा का स्क्वायर ही मान सकते हैं। तो ये दोनों टर्म्स को क्लब करके अपन अप्रोक्सीमेटली थीटा क्यूब लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से थीटा क्यूब की वैल्यू mg अपॉन 2ay के इक्वल आ जाएगी, एंड थीटा कैन बी रिटन एज mg अपॉन 2ay टू द पावर 1/3। ओके, क्वेश्चन 2, a solid sphere of radius r made of a material of Bulls modulus b is surrounded by a liquid in a cylindrical container. A massless piston of area A, area of container is also A, floats on the surface of the liquid. So देखो, ये पहले दो स्टेटमेंट्स में जो सिचुएशन दिया हुआ है उसको अपन यहाँ पे ड्रॉ कर देते। एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, इसको सिलिंड्रिकल कंटेनर मान लेते, और इसके अंदर एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है ऑफ रेडियस r, इसका बल्स मॉड्यूलस b दिया हुआ है और लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, राइट। अभी सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है और पिस्टन पे अपन एक m मास का ब्लॉक रख रहे हैं। पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि सिलेंडर के इक्वल होगा वो a दिया हुआ। तो यहाँ पे इस मास की वजह से जो प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर, वो mg बाई a के इक्वल होगा। अगर अपन इस पिस्टन का FBD बनाते तो जो भी एक्स्ट्रा वेट mg आ रहा है उसको एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया ये बैलेंस करना चाहिए। तो एक्सेस प्रेशर इतना जनरेट हो जाएगा, एंड पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये एक्सेस प्रेशर लिक्विड के हर एक पॉइंट पे इक्वली जनरेट होगा, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, व्हेन अ मास ऑफ कैपिटल M इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन, इसको अपन ने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया। तो अगर इसको अपन प्लेस करते तो ऐसा करने पर प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर के बढ़ने पर स्फीयर का रेडियस कम हो जाएगा। तो स्फीयर का रेडियस क्या अमाउंट से कम होगा यही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे पल्स मॉड्यूलस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ये एक्सेस प्रेशर ही होगा mg बाई a, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डेल्टा v अपॉन v। तो पल्स मॉड्यूलस को अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस mg बाई a अपॉन डेल्टा v अपॉन v लिख सकते। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें डेल्टा v अपॉन v की वैल्यू आ जाएगी, विच इज mg अपॉन ab, और ये सारी चेंजेस बहुत ही छोटे होने वाले। तो हमें पता है कि वॉल्यूम तो r क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इसको अपन 3 टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस लिख सकते। सो दैट मीन्स डेल्टा r अपॉन r विल बी इक्वल्स टू mg अपॉन 3 टाइम्स ab। दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू 3 होगी। Okay. Question number 3. A 0.1 kg mass is suspended from a wire of negligible mass. The length of the wire is 1 meter and its cross-sectional area is also given 4.9 into 10 to the power minus 7. If the mass is pulled a little in the vertically downward direction and released, it performs SHM with angular frequency of 140 radians per second. Young's modulus भी दिया हुआ है। अच्छा, यंग्स मॉड्यूलस हमें फाइंड करना, ओके। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वायर को भी अपन एक स्प्रिंग की तरह मान सकते विद स्प्रिंग कांस्टेंट ay अपॉन l। और अगर मैं वायर को स्प्रिंग की तरह मान रहा हूँ और इसके नीचे अगर मैं एक m मास सस्पेंड कर रहा हूँ तो इसको वर्टिकली नीचे डिस्प्लेस करने पर जो SHM होगा उसके टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला सबको पता होगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर एनी स्प्रिंग मास सिस्टम, राइट। तो बस ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। 2 पाई मास कितना दिया हुआ है 0.1,
और के ए वाई अपॉन एल के इक्वल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया 4.9 इंटू 10⁻⁻7। यंग्स मॉड्यूलस हमें फाइंड करना है, इसको y मान लो और लेंथ 1 मीटर दिया हो तो ऊपर 1 आ जाएगा। टाइम पीरियड इज 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो टाइम पीरियड को अपन 2 पाई अपॉन 140 के इक्वल लिख सकते, 2 पाई कैंसिल एंड दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों को इन्वर्स करके स्क्वायर कर दो, तो 140 का स्क्वायर दिस विल बी 4.9 इंटू 10⁻⁻7 इंटू यंग्स मॉड्यूलस अपॉन 0.1। टर्म्स को रीअरेंज कर दो, यंग्स मॉड्यूलस विल कम आउट टू बी 140 का स्क्वायर इंटू 0.1 अपॉन 4.9 इंटू 10⁻⁻7। इसको सॉल्व करने पर ये 4 इंटू 10⁻9 के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स पी की वैल्यू 4 के इक्वल होगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, a homogeneous block with a mass of m hangs with 3 vertical wires of equal length arranged symmetrically. Find the tension of the wires if the middle wire is of steel and the other 2 wires are of copper. All the wires have same cross-sectional area. Consider the modulus of elasticity of steel to be double of that of copper. तो कॉपर का अगर मैं यंग्स मॉड्यूलस y मान रहा हूँ तो स्टील का यंग्स मॉड्यूलस 2y होगा। और बाय सिमेट्री कॉपर में अगर मैं टेंशन T1 मान रहा हूँ या फिर TC मान रहा हूँ तो इन दोनों में TC होगा, दोनों कॉपर वायर्स में, और स्टील में TS मान लो। हमें फाइंड क्या करना है, टेंशन। तो यहाँ पे तीनों जो टेंशन होंगे 2TC प्लस TS, ये तीनों मिलके mg को बैलेंस कर रहे, ये पहला इक्वेशन। तीनों वायर्स की और क्या स्पेशलिटी होगी, तीनों वायर्स में डेल्टा एल सेम होगा, एक्सटेंशन, बिकॉज दे आर इन पैरेलल। डेल्टा एल सेम मतलब उनका स्ट्रेन भी सेम होगा बिकॉज ओरिजिनल लेंथ भी सेम था, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये दिया हुआ है सवाल में। और अगर स्ट्रेन सेम है, स्ट्रेस को अपन क्या लिखेंगे, स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, स्टील के अंदर स्टील का जो यंग्स मॉड्यूलस है वो डबल होगा, दैट मींस द स्ट्रेस इन स्टील विल बी 2 सिग्मा इफ द स्ट्रेस इन कॉपर इज सिग्मा, ये अपन असाइन कर सकते हैं। एंड स्ट्रेस इज टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ऑल द वायर्स हैव द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट मींस स्टील का अगर मैं टेंशन 2T मानता हूं तो कॉपर का मैं टेंशन T मान सकता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है मतलब टेंशन और स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होंगे, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन में डाल दो, 2 times TC that means 2 times T plus TS which is again 2T, this will be equals to mg, तो 4T mg के इक्वल आ रहा है, that means T will be mg by 4, और अगर T mg by 4 के इक्वल है तो कॉपर के अंदर जो टेंशन होगा वो mg by 4 T के इक्वल होगा, एंड स्टील के अंदर जो टेंशन है वो 2 times T मतलब mg by 2 के इक्वल होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अभी, a uniform copper bar of density rho and length L and cross sectional area S, Young's modulus Y, is moving horizontally on a frictionless surface with constant acceleration a0. So एक कॉपर रॉड दिया हुआ है, इसका लेंथ L दिया हुआ है, डेंसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया और यंग्स मॉड्यूलस, ये सारे पैरामीटर्स गिवन है, और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन a0। इसको कौन मूव करवा रहा है, किस फोर्स से मूव कर रहा है, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ, दैट्स नॉट आवर कंसर्न, राइट। ए पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द वायर। तो वायर के सेंटर पे अगर मुझे स्ट्रेस चाहिए तो इसको कट करके पहले टेंशन निकाल लो, कट करके इसके लेफ्ट वाले पार्ट का एफवीडी बना दो। लेफ्ट वाले पार्ट पे राइट वाला पार्ट अपने तरफ टेंशन लगा रहा होगा और इसका भी एक्सेलरेशन सेम a0 होगा, और लेफ्ट वाले पार्ट का मास m/2 होगा। टोटल मास अगर मैं m मान लूं तो लेफ्ट वाले पार्ट का मास m/2 होगा, दैट मींस टेंशन एट द सेंटर विल बी m/2 टाइम्स a0, और मास को अपन क्या लिख सकते हैं, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वायर का वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स लेंथ s इंटू l, ये मास होगा इनटू a0/2। तो ए पार्ट में टेंशन एट द मिड पॉइंट
इसके इक्वल होगा, और टेंशन को क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दो तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सो स्ट्रेस विल बी रो एल ए नॉट अपॉन 2। ये ए पार्ट का फाइनल आंसर होगा। बी पार्ट में एलोंगेशन पूछा, तो एलोंगेशन के लिए अपन टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाल सकते। टेंशन हर एक पॉइंट पे वेरी कर रहा होगा, तो किसी भी एक्स पे अगर मैं टेंशन निकालता हूं, मान लो राइट हैंड से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर मुझे टेंशन चाहिए, तो अगेन इसको कट कर दो और इसके लेफ्ट वाले पार्ट का एफबीडी बना लो। एक काम करते हैं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए राइट पार्ट के बजाय लेफ्ट वाले पार्ट से रेफरेंस ले लो, लेफ्ट वाले पार्ट से डिस्टेंस x ले लो, और यहाँ पे अगर मुझे टेंशन चाहिए तो इसको कट करो और इसके लेफ्ट वाले पार्ट का एफबीडी बनाओ। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो इस पार्ट को ए नॉट से एसोलेट करवा रहा होगा, और ये वाले पार्ट का जो मास होगा, लेट्स से इसका मास m1 है, तो इसके मास को अपन टोटल मास पर यूनिट लेंथ इनटू इस पार्ट का लेंथ x इसके इक्वल लिख सकते हैं। That means tension force will be equals to the corresponding mass m by l into x multiplied by acceleration। और extension क्या होगा, integration of t dx upon ay, क्रॉस सेक्शनल एरिया s दिया हुआ है, तो टेंशन की वैल्यू डाल दो इधर, m into x into a नॉट। अच्छा, कांस्टेंट टर्म्स को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, खाली x को अंदर रहने दो, तो टेंशन को अपन m a नॉट बाई एल लिख देंगे, और यहां से एस वाई के टर्म्स को एज इट इज लिख दो। इंटीग्रेशन के अंदर x dx बच जाएगा। L इंटू एस इज वॉल्यूम ऑफ द वायर, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो इन सारे टर्म्स को मैं डेंसिटी इंटू ए नॉट अपॉन वाई, इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू l विल बी l स्क्वायर बाई 2। तो एक्सटेंशन का ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है, रो ए नॉट एल स्क्वायर अपॉन 2y, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, क्वेश्चन नंबर 6। Two bars A and B are stuck together using an adhesive. The contact surface of the bars makes an angle of theta with the length. Area of cross sectional दिया हुआ है दोनों का S0. It is known that the adhesive yields if normal stress at the contact surface exceeds sigma naught. Find the maximum pulling force that can be applied without detaching the bars. देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये वाले एरिया की बात हो रही, ये S0 दिया हुआ है और दोनों बार्स को इस सरफेस के अलोंग स्टिक किया हुआ है, तो इस सरफेस के अलोंग जो इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे, स्ट्रेस के कैलकुलेशन में हमेशा इंटरनल फोर्स की बात होती है, तो अगर मैं दोनों पार्ट्स का एफबीडी बनाऊं इस तरीके से, यहाँ पे अगर F लग रहा है तो इस लेफ्ट वाले पार्ट पे राइट वाला पार्ट अपने ही तरफ F इंटरनल फोर्स लगा रहा होगा। ये वाला जो F है ये इंटरनल फोर्स जो राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट पे अपने तरफ लगा रहा है, एंड सिमिलरली लेफ्ट वाला पार्ट भी राइट वाले पार्ट पे अपने तरफ लगा रहा होगा, सेम इंटरनल फोर्स। अभी इसके करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए अपन हमेशा फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एरिया लेंगे, और यहाँ पे इस सरफेस की बात हो रही है, तो ये जो इंटरनल फोर्स है F, इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा दिया होगा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, दैट मींस दिस कंपोनेंट इज F sin थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी F cos थीटा। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की बात हो रही, द एडहेसिव यील्ड्स इफ नॉर्मल स्ट्रेस एक्सीड सिग्मा नॉट, मतलब मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा नॉट हो सकती है, और डायग्राम के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, F sin थीटा अपॉन ये वाला एरिया, बट हमें दिया तो ये वाला एरिया S0 दिया और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इस एरिया को अगर मैं S डैश मान लूं तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं S डैश cos ऑफ 90 माइनस थीटा, ये S0 के इक्वल होगा। अंदर वाला डायमेंशन तो दोनों के लिए सेम, तो जिस तरीके से अपन लेंस के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करते हैं,
वैसे ही एरियाज पे भी अप्लाई कर सकते हैं. दैट मीन्स एस डैश विल बी इक्वल्स टू एस नॉट अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे स्ट्रेस के कैलकुलेशन में इसी एस डैश से डिवाइड करेंगे, एस नॉट अपॉन साइन थीटा, तो ये ऊपर जाके साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा. दैट मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस इज कमिंग आउट टू बी एफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एस नॉट. और ये स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए, सिग्मा नॉट से कम होना चाहिए, राइट. दैट मीन्स द अप्लाइड फोर्स एफ should be less than sigma naught s naught upon sin square theta. Okay, so guys, this completes our discussion of all the questions from this set. Keep up the hard work by practicing many such questions from the other sets as well. Also, please do subscribe to the channel Calibrate Physics. You all can also like, share and comment below, and hit on the bell icon to get notifications of many such videos in the future. Thank you all for watching this video and take very good care of yourselves.